Hi, I am Atik Balai and I am going to talk about how is international relations defined. In this video, I am going to talk about how definition works in IR, what are the different actors in international relations like states, international organizations, non-state actors, international system and people. What are the definitions by different scholars of international relations? How can we come up with our own definition of international relations? What are the different names of IR and what does IR in small letters mean? So let's start with the first one, how definition works in IR. Scholars and students focus on the subject matter of IR and then define it as a theoretical field of study while taking it as a practical field of international practice. सब्जेक्ट मैटर ऑफ आईआर बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, रोज़ाना की बुनियाद पर वो इवॉल्व होता रहता है। तो स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स ये कोशिश करते हैं कि वो आईआर की थ्योरी डेवलप करें, उस थ्योरी के थ्रू सब्जेक्ट मैटर को अंडरस्टैंड करें और फिर इंटरनेशनल रिलेशंस को एज अ फील्ड ऑफ स्टडी डिफाइन करें और उसका स्कोप आइडेंटिफाई करें। अकॉर्डिंग टू वन स्कॉलर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, आईआर की डेफिनेशन मुमकिन नहीं है क्योंकि इसका सब्जेक्ट मैटर डेली बेसिस पे इवॉल्व होता रहता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्कॉलर्स ने कोशिश की है कि कुछ मैकेनिज्म्स डेवलप करें कि आईआर को कैसे डिफाइन करना है और फिर उन्होंने कुछ डेफिनेशंस भी प्रोवाइड किए हैं। The complexity is that there is a diversity of approaches to international relations and there are so many theories of IR, like more than a dozen theories and more than half a dozen approaches. So it's not very easy to define IR. And the factors to keep in mind during the process of defining IR is epistemology and advocacy. Epistemology को theory of knowledge या philosophy of knowledge भी बोलते हैं। तो IR एक theoretical field है, उसके अंदर कौन कौन से subjects को, कौन कौन से topics को कैसे understand करने की कोशिश की जाती है, कैसे study किया जाता है, IR की practical research कैसे होती है। तो epistemology में हम ये चीज़ें focus करते हैं। And that's why epistemology is important. साथ में आईआर का एक स्टूडेंट या एक स्कॉलर एक पॉलिटिकल एक्टर होता है, तो वो कुछ एक खास आइडियाज को, कुछ थ्योरी के किसी पार्ट को या पूरी एक थ्योरी को वो अपनी लाइफ में एडवोकेट भी कर रहा हो। Now, if I can summarize studying international relations in a single sentence, I will say in international relations we study the internationality or globalness of anything of importance to us humans collectively. दिस इज आईआर जो है, आईआर फोकस करती है इंटरनेशनलिटी या ग्लोबलनेस को चीज़ों की, और इस वजह से हम कहते हैं कि वी स्टडी द इंटरनेशनल और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवरीथिंग. सो वी हैव पॉलिटिक्स ऑफ एवरीथिंग एंड वी कैन हैव एन इज्म फॉर एवरीथिंग ऑफ इंटरनेशनल और ग्लोबल इंपॉर्टेंस, like politics of global warming, politics of gender, politics of sports, politics of Pepsi versus Coca-Cola, McDonaldization, कुछ भी इस तरह का हो जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का हो तो हम आईआर में पढ़ सकते हैं. Now we come to actors in international relations. There are states, international organizations, non-state actors, international system itself and people in international relations. स्टेट्स रियासतें यानी पॉलिटिकल कम्युनिटीज़ होती हैं, उनकी अपनी रिकॉग्निशन होती है, पार्लियामेंट होता है, उनकी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं और वो एक ख़ास तरीके से दूसरे स्टेट्स से इंटरेक्ट करते हैं. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी इंटरनेशनल सिस्टम में इंपॉर्टेंस है और एज एन एक्टर अपना रोल प्ले करते हैं. अब स्टेट के अंदर सब स्टेट इंटिटीज़ होती हैं. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत सारी टाइप्स हैं, like international governmental organizations, international non-governmental organizations, multinational corporations, regional blocks जो कि informal grouping, regional grouping होती है, और regional organizations जो कि formal grouping होती है. फिर आते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स. ये मॉडर्न टाइम्स का एक नया फिनोमेना है जिसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. नॉन स्टेट एक्टर्स आर दोज एक्टर्स विच आर नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द स्टेट बट दे हैव इफेक्ट्स ऑन द इंटरनेशनल सिस्टम, like the terrorist organizations or the private media bodies and so on. इंटरनेशनल सिस्टम बजाते खुद एक एक्टर के तौर पे हम स्टडी करते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम स्टेट्स के लिए वो कौन सा माहौल क्रिएट करता है और फिर स्टेट उसमें इंटरेक्ट करते हैं और इंटरनेशनल एक्टर्स भी उसमें इंटरेक्ट करते हैं. लोगों का भी इंटरनेशनल रिलेशंस पे असर पड़ता है, हम उसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं.
Now I'll be talking about some definitions by scholars of international relations. Like Wikipedia की जो definition है IR की वो है scientific study of interactions between sovereign states. तो खुद मुख्तार रियासतों के आपस के interactions की scientific study को IR कहते हैं. यह IR की पुरानी definition है जो कि इसके नाम से शो हो रहा है. International relations, relations between nations or between states. So ये तो simplest definition है. ट्रेवर टेलर के मुताबिक a discipline which tries to explain political activities across state boundaries. सरहदात के उस पार political activities को स्टडी करने वाला डिसिप्लिन IR है. सीमन ब्राउन के मुताबिक यही डेफिनेशन है थोड़े डिफरेंट वर्ड्स में. The investigating and studying of patterns of actions and reactions among sovereign states is represented by their governing elites. तो लीडर्स के थ्रू सॉवरेन स्टेट्स जो आपस में एक्शंस रिएक्शंस के जो पैटर्न्स रखती हैं उसकी स्टडी और इन्वेस्टिगेशन को IR कहते हैं. जोसेफ ओला के मुताबिक इंटरनेशनल रिलेशंस इज द स्टडी ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेपरेट एंटिटीज और नेशंस विद इन द इंटरनेशनल सिस्टम. इंटरनेशनल सिस्टम में सेपरेट एंटिटीज यानी स्टेट्स या नेशंस या इंटरनेशनल एक्टर्स के आपस में इंटरेक्शंस के हर फॉर्म की स्टडी को IR कहते हैं. हेंस मॉर्गन ताओ के मुताबिक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्ट्रगल फॉर पावर है और पावर पॉलिटिक्स है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरह. हेंस मॉर्गन ताओ एक रियलिस्ट है. वो समझते हैं कि पॉलिटिक्स जो है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो चाहे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो या इंटरनेशनल रिलेशंस उसमें स्ट्रगल फॉर पावर होती है. नॉर्मन पोडलफोर्ड एंड जॉर्ज लिंकन के मुताबिक IR is the interaction of state politics with the changing pattern of power relationships. इंटरनेशनल सिस्टम में जो पावर रिलेशनशिप्स जो ताकत के तनासुब के पैटर्न्स जो चेंज होते रहते हैं उनके साथ इंटरेक्शन है रियासत की सियासत की. तो रियासत की सियासत और बैनुल अक़वामी सियासत के आपस के इंटरेक्शन को IR कहते हैं. हेरोल्ड एंड मार्गरेट स्प्राउट डिफाइन करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एज those aspects of interactions and relations of independent political communities in which some element of opposition, resistance or conflict of purpose or interest is present. ये भी interactions और relations की study मानते हैं IR को जिसमें political communities यानी जो independent states हैं वो आपस में जो interact करते हैं उसकी study को IR कहते हैं. लेकिन वो कहते हैं कि interaction सिर्फ एक खास टाइप के और वो opposition, resistance या conflict of purpose और interest वाले जो रिलेशंस हैं इनको ज्यादा फोकस करना है. मतलब फॉर देम IR इज मोर रिलेटेड विद वॉर एंड पीस. यहाँ पे मैंने एक नेक्स्ट स्लाइड में एक डेफिनेशन को स्पेसिफाई किया है सेपरेटली प्रेजेंट करने की कोशिश की है. वो है साइंस एंड आर्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन काइंड वाली डेफिनेशन. कार्ल वोल्फगैंग ड्यूश के मुताबिक अगर आप IR को डिफाइन करने की कोशिश करते हो तो आप क्या डिफाइन करोगे? यू विल प्रोवाइड एन इंट्रोडक्शन टू द आर्ट एंड साइंस ऑफ द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड. इफ सिविलाइजेशन इज किल्ड इन द नियरेस्ट फ्यूचर इट विल नॉट बी किल्ड बाय फेमाइन और प्लेग बट बाय फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. सो साइंस और आर्ट समझता है कार्ल वोल्फगैंग IR को बनी नोए इंसान की बका की साइंस और आर्ट समझता है. और ये डेफिनेशन मुझे बहुत अच्छी लगी है क्योंकि होता भी यही है. इंटरनेशनल रिलेशंस ही डिफाइन करती है कि दुनिया में अब जंग होनी है या दुनिया में अब अमन होना है. इंसानियत बका की तरफ जाएगी या इंसानियत खसारे में जाएगी. Now we come to our own definition of international relations. We define it as international relations is the scientific philosophical study of interactions of international actors in a global environment when individuals affect the global patterns and the global system of interactions affect the lives of individuals and communities. ये वो साइंटिफिक या फिलोसॉफिकल स्टडी है इंटरनेशनल एक्टर्स के इंटरेक्शंस की. इन्वायरमेंट ग्लोबल है. उस ग्लोबल इन्वायरमेंट में अफराद ग्लोबल पैटर्न्स पे असर डालते हैं और अफराद की जिंदगियों पर और कम्युनिटीज पे सोसाइटीज पे ग्लोबल सिस्टम का बहुत ज़्यादा असर होता है बिकॉज वी लिव इन दिस एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन. नेक्स्ट, नेम्स ऑफ IR एंड व्हाट इज IR इन स्मॉल लेटर्स. IR के बहुत सारे नाम हैं जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल स्टडीज, ग्लोबल रिलेशंस, ग्लोबल अफेयर्स. जब आप इसको पॉलिटिकल साइंसेस की ब्रांच समझते हो तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की एक सब्जेक्ट हो जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस.
इंटरनेशनल स्टडीज़ हम इसको तब बोलते हैं जब ये इंटरनेशनल ट्रेंड्स एंड इवेंट्स को स्टडी करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। ग्लोबल स्टडीज़ इसको हम तब बोलते हैं जब ग्लोबल ट्रेंड्स एंड इवेंट्स को फोकस करता है, और स्कॉलरली स्टडी ऑफ ग्लोबल ट्रेंड्स जब करते हैं तो हम इसको ग्लोबल स्टडीज़ बोलते हैं। आईआर को स्मॉल लेटर्स में अगर लिखा जाए तो ये प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, अफेयर्स और रिलेशंस हैं जिसको आईआर के सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं। तो कैपिटल आईआर सब्जेक्ट का नाम है, स्मॉल आईआर इज द प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, अफेयर्स एंड रिलेशंस in an international environment. With this, our video comes to a conclusion. Please like, comment and share it. The link of our Facebook page is in description, and also don't forget to subscribe our channel. Thank you.